Hello everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will cover the chapter 1 and chapter 2 most important questions from the exam point of view for class 12 psychology. So let's begin with it. The first chapter is variations in psychological attribute. इस chapter में there are many definitions also which are very important like the psychological attributes. Assessment refers to the first step in any type of research which we are doing. An assessment can be of two types, the formal one and the informal one. Okay. Next, these are the some domains of attribute like intelligence. Intelligence क्या होता है? It is a global capacity to understand, think rationally and use available resources effectively. ओके एप्टीट्यूड होता है एक इंसान का पोटेंशियल जो वो स्किल्स करने में उसको काम करता है. इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को करने की हमारी इच्छा या प्रेफरेंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु लाइक्स टू स्विम is obvious that his interest it is swimming. Okay, then personality, they are relatively enduring characteristics. For example, a person is dominant, a person is submissive or moody or socially withdrawn from the society. Values जो होते हैं वो enduring beliefs होते हैं, rules and regulations होते हैं. Okay, these are the some methods which are used for psychological assessment. कैसे methods हैं ये? जैसे interview हो गया, case study हो गया, psychological test हो गया, observation and self report. Okay, let's come to very important part, that is theories of intelligence. So theories of intelligence में सबसे पहली हमारी है Alfred Binet. Alfred Binet gave us the uni or one factor theory. In the exam, you may be asked that mention the theories of intelligence, right? Any two theories of intelligence. तो आपको पता सारी होनी चाहिए because the examiner can ask any of the theory, right? It can come as a 2 marker itself also. So let's cover it one by one. So Alfred Binet ने दिया unifactor theory. According to Alfred Binet, using one factor for solving a problem is understandable and it refers to one factor theory. Charles Spearman gave two factor theory. Two factors में दो factor आएंगे, एक आएगा G factor जिसको हम general factor बोलते हैं और ये common for all होता है. स्पेसिफिक फैक्टर को हम एस फैक्टर बोलते हैं और ये स्पेसिफिक एबिलिटीज के लिए होता है. देन द थर्ड थ्योरी इज लुई थर्स्टन. ही गेव द 7 PMA, दैट इज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज. ये सारी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं. इसके नाम बस लर्न कर लो, इसके अंदर का लिखने की आई डोंट थिंक दैट इट विल be necessary. Okay, the next is Arthur Jensen. Arthur Jensen gave a very important ability which consists of two levels, that is level 1 associative learning and level 2 cognitive competence. JP Guilford ने 3 components दिए जिनका नाम है operations, contents and products. It refers to 6 into 5 into 6, that is 180 cells. मैं दोबारा बताऊंगी. जेपी गिलफर्ड ने जो एबिलिटी दी, जो इंटेलिजेंस थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम इसने दिया 3 डायमेंशंस के रूप में जिसका नाम था ऑपरेशंस, कंटेंट्स और प्रोडक्ट्स. ही गेव अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सेल्स दैट इज 6 into 5 into 6, it equals to 180. You have to mention it in order to get marks. Okay. The next is theory of multiple intelligence. It is very important. It is given by Howard Gardner. Howard Gardner gave multiple intelligence and हमने एक इसका एक्रोनिम करा हुआ है जो है LLBMSIIN, which refers to linguistic, logical mathematical, spatial, musical, bodily kinesthetic, interpersonal, intrapersonal and naturalistic. Okay, one by one I'll cover the major parts. So the first is linguistic. Linguistic का मतलब जो लोग word smart होते हैं, poets, writers, ये सब लोग. Logical, mathematical, they are very great scientists, mathematicians. Spatial refers to pilots, sailors, etc. Right? Musical क्या हो गया? जिनको themes, rhymes, sensitivity towards tunes and music patterns होता है. Bodily kinesthetic में हमारे gymnasts, surgeon, athletes, dancers, which have a very flexible and creative body. Interpersonal मतलब interconnectedness, एक दूसरे से, right? तो ऐसे लोग जैसे philosophers हो गए, spiritual leaders हो गए, counselors हो गए, psychologists हो गए. देन इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल में हमारा स्पिरिचुअल आएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. इंटरपर्सनल मतलब इंटरकनेक्शन, दैट इज फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर. और इंट्रापर्सनल मतलब जो खुद पे ज्यादा बिलीव करते हैं जैसे स्पिरिचुअल लीडर्स और फिलोसोफर्स. नेचुरलिस्टिक कॉमन सी बात है, नेम से पता चल रहा है. सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द नेचुरल वर्ल्ड जैसे बॉटनिस्ट, हंटर, फार्मर, एनिमल एक्टिविस्ट एटसेट्रा. Next is triarchic theory of intelligence. It was given by Robert Sternberg.
इस इंटेलिजेंस के 3 पार्ट्स हैं, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल। द फर्स्ट इज कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल के अंदर 3 सब पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन, सेकंड इज मेटा एंड थर्ड इज परफॉर्मेंस। ये तीनों पार्ट्स कॉम्पोनेंशियल के अंदर ही आएंगे। कॉम्पोनेंशियल मतलब किसी भी चीज को कॉम्पोनेंट्स में बांटना और उसको स्टेप बाय स्टेप इनकोड करना। फर्स्ट इज नॉलेज एक्विजिशन। इसमें क्या है कि हमें नॉलेज गेन करनी है कि हमें काम करना क्या है, क्या क्या चीजें यूज होंगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, राइट। मेटा हो जाएगा सेकंड स्टेज। यहाँ पे हम प्लानिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोसेस क्या है, काम होगा कैसे एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग यूज क्या होगी। थर्ड इज परफॉर्मेंस स्टेज, जहां पे हम एक्शन कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को एक एक्शन फॉर्म में ला रहे हैं और एक्चुअली वी आर डूइंग द थिंग्स। सेकेंड इज एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल में जैसे हम बोलते हैं कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलेगा, न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होगा। दिस इज एक्सपीरियंशियल। कंटेक्चुअल इज street smart people or people who are having a business sense. They are having a great ability to deal with the environmental situations and they can easily adjust with variety of situations. Then let's come to pass model. ये हमने कवर किया ट्रायर्किक। पास मॉडल हमें दिया है जेपी दास और जैक कर्बी ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन पास मॉडल, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल। ये आपको डेफिनेशन तो याद होनी ही चाहिए फ्रॉम द बोर्ड परस्पेक्टिव ऑल्सो। ओके, अब इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले अराउजल और अटेंशन। अराउजल हमें हेल्प करता है अटेंड करने में एक स्टिमुलाई को। अगर हम अराउज्ड हैं तब हमारी लर्निंग बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर आपको कह रही है कि एक टेस्ट हो रहा है, तो व्हाट आर यू डूइंग, अब तुरंत एक्टिव हो जाते हो और उसकी बात को सुनने लग जाते हैं, राइट। साइमल्टेनियस सक्सेसिव क्या हो रहा है, हमें टेस्ट में बिठाया गया और हमें याद आ रहा है धीरे धीरे कि हमें सॉल्व कैसे करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है, थिंग्स को कैसे फिगर आउट करना है। Planning is, it is a very important part of the intelligence, right? When we are planning a particular course of action, we are increasing its effectiveness, right? And it helps to reach the target and evaluate the effectiveness also. In case the plan doesn't work, the part of intelligence also help to review the gaps. Okay, let's come to the next part, assessment of intelligence. Alfred Binet का नाम आएगा यहाँ पे mental age के लिए. Also in my several videos in the previous classes also I have told the concept of IQ, जहाँ पे मैंने IQ का फॉर्मूला बताया है MA upon CA into 100. I have told you that this formula was given by William Stern and the concept of MA, that is mental age, it is given by Alfred Binet. Okay, so let's come to the next one. Here you can see a table which is having a lot of IQ like high, average. देखो सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं, एक तो हमारा वेरी सुपीरियर और एक हमारा बिलो 70। इट इज ऑब्वियस दैट सबसे हाईएस्ट एंड लोएस्ट तो पता ही होना चाहिए। अबव 130 को हम वेरी सुपीरियर आईक्यू बोलेंगे और बिलो 70 को इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। ओके, लेट्स कम फॉरवर्ड। द नेक्स्ट इज very important again, intellectual giftedness. See, there is a very important difference between giftedness and talent. गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, उनका आईक्यू ऑलवेज 130 लाइक आता है, राइट। दे आर वेरी एक्सेप्शनल, दे हैव एक्सेप्शनल एबिलिटी इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन वेरी वेराइटी ऑफ एरियाज, राइट। टैलेंट एक नैरोअर टर्म है, हम एक चीज को और सिग्निफाई कर सकते हैं। गिफ्टेडनेस हम लिख सकते हैं कि ये एक ब्रॉड टर्म है और टैलेंट जो है वो एक नैरोअर टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, टैलेंट एक स्पेसिफिक फील्ड में होता है और जो लोग हाईली टैलेंटेड होते हैं उनको हम प्रोडिजीज कहते हैं। ओके, लेट्स कम। यहाँ पे आपको बहुत सारी फीचर्स दिख रहे हैं। दीज ऑल फीचर्स आर द फीचर्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। लेट्स गिव अ क्विक रीड। एडवांस्ड एंड लॉजिकल थिंकिंग, बहुत अच्छी थिंकिंग होती है उनकी, हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग होती है, सुपीरियर जनरलाइजेशन होती है, ओरिजिनल थिंकिंग होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, सॉलिडरी एकेडमिक वैल्यूज। आपको 2 या 3 तो याद होने ही चाहिए एज कंपेयर टू द व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, राइट। ओके, लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ टेस्ट। सबसे पहला आता है इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल एक इंसान पे होता है एक टाइम पे, ओरली रिटर्न फॉर्म में कैसे भी हो सकता है। ग्रुप टेस्ट एक इंसान बहुत लोगों पे भी कर सकता है, राइट, एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न और ओरली ऑल्सो। सेकेंड इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ऑब्वियस है कि वर्बल जो है वो लिटरेट लोगों पे होगा, नॉन वर्बल जो है उसमें हम पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल आरपीएम। परफॉर्मेंस टेस्ट हमारा ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, इन सब चीजों को दिया जाएगा, जैसे कोर्स ब्लॉक टेस्ट, यहाँ पे वुडन ब्लॉक्स मिलते हैं एंड द पार्टिसिपेंट इज आस्क्ड टू एडजस्ट एंड एनकोड द ब्लॉक्स अकॉर्डिंगली। ओके,
द नेक्स्ट इज इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस का क्या महत्व है. तो इंडियन ट्रेडिशन में द वेरी इंपॉर्टेंट नेम विच वी हैव इज ऑब्वियसली जेपी दास. यहाँ पे we will see there are 4 features which are under the Indian tradition, that is cognitive capacity, social competence, emotional competence and entrepreneurial competence. Okay, let's come forward. Salo and Mayer का concept EQ. You should know that EQ is given by Salo and Mayer. Okay, don't be confused with IQ and EQ. These both are different with each other. Okay, aptitude मैंने आपको पहले भी बताया. Aptitude में you have to use the word potential. राइट, किसी भी चीज को करने की आपका पोटेंशियल क्या है, स्किल क्या है, वो एप्टीट्यूड हो जाएगा. राइट. ओके, एंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया कि इट इज प्रेफरेंस. ओके, पोटेंशियल एंड प्रेफरेंस, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी क्या होता है, कोई भी चीज 11th क्लास में भी आप सबने पढ़ा है. क्रिएटिविटी रेफर्स टू द ओरिजिनलिटी ऑफ आइडियाज. राइट, जैसे कई लोग बहुत अच्छे क्रिएटिव होते हैं पोएट्री में, साइंस में. राइट. ओके, सो नेक्स्ट इज I think first chapter I have covered. Let's come to the second chapter, self and personality. Okay, so let us begin with the second chapter important questions, that is self and personality. Self की definition आप सबको पता होनी चाहिए कि self refers to the characteristics in which we define ourselves, our behavior and traits, right? Okay, then self के बहुत सारे types होते हैं, personal self, social self, familial self. There are important terms in this chapter like self esteem. क्या होता है, किसी की value judgment, this is called as self esteem. Self esteem दो types की होती है, high self esteem, low self esteem, right? Okay, then self control, very important. सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, किसी भी चीज को, ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स को कंट्रोल, अंडर डीले एंड अंडर कंट्रोल रखना. सेल्फ कंट्रोल के 3 पार्ट्स हैं, ऑब्जर्विंग ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन एंड सेल्फ रीइंफोर्समेंट. I think you all are familiar with these terms if you have studied 11th class psychology. Okay, reinforcement is rewarding behaviors. Okay, let's begin with individual culture, with Western culture and Indian culture. See that I told you earlier also, Western culture में society is different and individual is different. Indian culture में the individual resides under and between the society. Okay, this is a very important distinction. So if we define it, वेस्टर्न कल्चर में बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड है. राइट, इंडिविजुअल्स जो हैं वो मेंटेन करते हैं इंडिविजुअलिटी, और वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है. वेयर एज इंडियन कल्चर को हम कलेक्टिविस्टिक कहते हैं और डिफरेंट बाउंड्रीज नहीं है, लॉट ऑफ डिपेंडेंसी है एंड देयर आर नो क्लियर बाउंड्रीज. ओके, देन लेट्स कम टू द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी. पर्सनालिटी में बहुत सारी अप्रोचेज आएंगी. Because this chapter is very lengthy in nature, I'll make a specific video of, or I have also made a specific video of this chapter. आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, a special video covering all the important terms in this chapter are been given. So I should not waste more time. I should tell you the main important themes which are important from the exam point of view. So in this chapter, the type and trait approaches, आपको सारी type approaches पता होनी चाहिए. जैसे शेल्डन हो गया, शेल्डन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड जूंग टाइप ए, टाइप बी. देन टाइप ए क्या होता है, टाइप ए के जो लोग होते हैं दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव, बहुत मोटिवेशन होती है, पेशेंस नहीं होता, दे फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम, और इसी की वजह से दे सफर CHD. CHD का मतलब होता है कोरोनरी हार्ट डिजीजेस. व्हाई? बिकॉज दे आर इन अ ग्रेट हरी, दे सफर BP, दे सफर हाइपरटेंशन एंड हार्ट प्रॉब्लम्स. टाइप सी कोऑपरेटिव, पेशेंट एंड कैंसर प्रोन होते हैं, एंड टाइप डी आर प्रोन टू डिप्रेशन. I kindly suggest everyone watching this video to go to my channel and watch the specific video of this current chapter. Then these are 5-factor model of personality, which is ocean. इसका ये एक mnemonics होता है, right? You can refer your NCERT also, or you can take a screenshot from here also. ओके, द नेक्स्ट इज साइकोडायनेमिक अप्रोच. सबसे पहले साइकोडायनेमिक अप्रोच में हम लिखेंगे द फादर ऑफ दिस अप्रोच इज साइमन फ्रॉइड. यहाँ पे हमारे 3 एलिमेंट्स आएंगे, दो जो कि होते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो. और उससे भी पहले देयर इज अ ट्राइंगल विच कवर्स द प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस. कॉन्शियस टॉप पे आता है, राइट? व्हाई? बिकॉज इट इज द फीलिंग पीपल आर अवेयर ऑफ. प्री कॉन्शियस होता है कि अगर हम उसको थोड़ी अटेंशन देंगे तभी हम अवेयर ऑफ होंगे. अनकॉन्शियस बिल्कुल भी अवेयर ऑफ नहीं होता, राइट? द पर्सन इज कंप्लीटली इन अ नॉन अवेयरनेस और नॉन कॉन्शियस स्टेट.
Then three elements, id, ego and superego. It works on pleasure principle and it is called as libido, which means immediate gratification. ईगो जो है वो इड से ही बड़ा होता है और ईगो जो है वो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे. देन सुपर ईगो वर्क्स ऑन वन सेकेंड या ego works on reality principle and super ego works on morality principle. Okay, then these are the defense mechanisms given by Freud. They are very important. Repression का मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, राइट कभी भी हमारे एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स को जब हम डिसमिस कर रहे हैं वो हो जाएगा रिप्रेशन. प्रोजेक्शन, जब हम लोगों पे एट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स, जैसे बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड आई फेल्ड इन एन एग्जाम, राइट कि पीपल हैव एग्रेसिव टेंडेंसी टूवर्ड्स मी दैट्स व्हाई आई एम रूड टू देम. ठीक है, तो हम दूसरों पे अपनी फीलिंग्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं. See, this is an example of denial then. A person with AIDS refuses to accept the denial of his illness. या अगर एक और example, if we say a person to stop smoking and he say no, I will not stop smoking, right? This is also a denial. So denial basically it is totally refuse to accept the reality. Then reaction formation का मतलब होता है अपने रिएक्शन से बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन करना. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज हैविंग अ रिलीजियस टेंडेंसी, he channelizes his energy into strong sexual energy, right? और vice versa. Okay, then rationalization, जब हम बिल्कुल ही अनरीजनेबल या अनरियलिस्टिक चीज को बोलते हैं किसी और को. फॉर एग्जाम्पल, my friend gave me a pilot pen, that's why I didn't have good marks. If he would have given me a trimax, I would definitely won in the exam. तो बड़ी irrelevant सी बात है, राइट? तो दैट इज रैशनलाइजेशन, जब बहुत ही अनरीजनेबल फीलिंग्स और बिहेवियर को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें. ओके, next, stages of personality development. It is this is very nicely covered in my previous video, so please watch it from there. Oral, anal, phallic, latency and genital stage, इसका एक particular order follow होता है. Then these are the post-Freudian approaches, and I have covered the most of the important elements of this chapter. I hope you like this video. Thank you very much and all the best.